چند برس قبل کسوٹی پاکستان ٹیلی ویژن کا ذہنی آزمائش کا منفرد اور معلوماتی پروگرام تھا، جس کے کمپیر عبداللہ بیگ کے 20 سوالات، قریش پور اور افتخار عارف کے 20 جوابات۔ فیصلہ آپ کریں، پروگرام کسوٹی مقبول تھا یا افتخار عارف کا انگوٹھی گھمانے کا انداز؟ اکبر ساجوانی، فیس ٹی وی، کراچی۔ اور آداب۔ سب سے پہلے آپ کی آمد کا شکریہ۔ میرا نام نصرت امین ہے اور میں جیو ٹیلی ویژن کے اس خاص پروگرام کا میزبان ہوں۔ بہت زمانے پہلے ایک نوجوان شہر لکھنؤ سے ایک سفر پر نکلتا ہے۔ اس کا یہ سفر ابتدائی طور پر کراچی پر ختم ہوتا ہے اور وہ اس شہر، اس سرزمین یعنی سندھ اور پاکستان سے ایک انتہائی مضبوط رشتہ قائم کر لیتا ہے۔ تو کسی نے ان کو ہرجائی بھی کہا ہوگا، لیکن ہمیں اس کا علم نہیں۔ شاید یہ قصہ لکھنؤ کا ہو، شاید ولایت کا ہو۔ پھر کسی نے اسٹیج پر تشریف تشریف رکھی۔ اس کے خوشبخت شجاعت صاحب درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ ٹیلی ویژن کمپیئرنگ اور تدریس سے ان کا پرانا تعلق، جانا پہچانا نہ۔ میں درخواست کروں گا محترمہ مہتاب راشدی صاحبہ سے، میں مہتاب کرنا کرنے کے لیے میں درخواست کروں گا محترمہ مہتاب راشدی صاحبہ سے، سوری صاحب، افتخار عارف صاحب، آپ کی شرکت ہمارے لیے ادا کروں۔ اور میں اتنے اپنے ساتھیوں کو اور شاید ایک دو بزرگوں کو دیکھ رہا ہوں اور اپنے ساتھ والوں کو دیکھ رہا ہوں جو میری طرح سے ہو گئے ہیں، اور اپنے بعد والوں کو دیکھ رہا ہوں۔ جی، میرا تعلق ہے اس شہر سے اور بدل گیا ہے بہت، اور ظاہر ہے ہر شہر بدل جاتا ہے کچھ نہ کچھ۔ کراچی جو ہم جب آئے تھے تب اور طرح کا شہر تھا، اب اور طرح کا شہر ہے۔ ایسے ہی لکھنؤ بھی بدل گیا اور اس کے اعتبار سے ایک مسلمانوں کا ملک شہر سمجھا جاتا تھا، اور مسلم تہذیب کا جو آخری بڑا مرکز اس کو کہتے تھے۔ اور میں جہاں پر جس ایک ایسے محلے میں پیدا ہوا، یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی میاں، یہ آپ کو بتائیں گے، جو دینی مدرسوں کی طرح نہیں تھا۔ وہاں پر شیعہ گویا بادشاہ رہتے تھے، سلاطین جو تھے وہ سب یعنی 92-90 برس رہی ان کی حکومت، لیکن ایسا لگتا تھا کہ جیسے اور عبید اللہ بیگ کے ساتھ سنگت، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا ذکر ہو، اور خاص طور پہ عبید اللہ بیگ مجھے بہت یاد آیا۔ عبید اللہ بیگ جی، صاحب، میں اصل میں لکھنؤ سے جب میں یہاں آیا تو 1965 میں جب آیا تو ظاہر ہے کہ ملازمت کی تلاش تھی، اس لیے کہ میرے پاس جتنے پیسے تھے، کوئی میں تو بہت ہی غریب گھرانے سے تھا، تو میرے پاس تھوڑے سے پیسے تھے اور وہ ختم ہو رہے تھے، اور مجھے خواہش یہ تھی کہ نوکری جتنی جلدی مل جائے تو اتنا بہتر ہے۔ تو میرے بزرگ کی معنی میں کہ وہ میرے سینئر تھے اور میرے بڑے بھائی کے دوستوں تھے، یاور میری صاحب۔ محفوظ ہوتا ہے، لیکن جو ڈاکو ہے یہ آپ کے گھر میں آتا ہے یا آپ کو گاڑی روکتا ہے تو
उसका ट्रिगर पर हाथ होता है, सही। और जब तक आप अपने हथियार तक पहुंचेंगे वो गोली चला देगा, तो बाकी शरीफ लोगों को डराने के लिए काम आ जाता है। कोई और चीज़ आप ये हासिल की हो? जी, मैं बल्कि इन्होंने मुझे बहुत चीज़ें दी अच्छा, और बहुत नायाब किताबें वाह, जो उर्दू में कहीं मिलती नहीं थी, इन्होंने दोबारा पुरानी किताबें निकाल के छपवाई और वो इनके पास मौजूद थी, उन्होंने पूरा सेट मुझे भेजा। बहुत शुक्रिया। तो एक फौजी को किताब भेजना बहुत जो है बड़ा तोहफा होता है। वो पढ़ भी लेते हैं कभी कभी, ऐसी बात नहीं। सही। 50 साल होता है आपसे। देखिए ये निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात है। तो भरी महफिल में उन्होंने राज की बात बता दी। हमें 50 साल से वो जानते हैं और हम उन्हें पता नहीं हम इन्हें कितना जानते हैं, हमें कितना जानते हैं। लोग आरिफ साहब को बहुत जानते हैं बिल्कुल, माशाल्लाह। यकीनन। और देखिए अगर मैं इसे इस तरह भी कहूँ कि ये अहद इफ्तिखार है, वाह। हम अहद इफ्तिखार हैं वाह, और ये हमारे लिए बड़े नसीब की बात है, बहुत खुशनसीबी की बात है कि ऐसे लोग अभी हमारे दरमियान मौजूद हैं जिनको देख के, जिनको सुन के, इवन जिनके नशिस्त व बर्खास्त से भी आप कुछ सीख लेते हैं। हमें तब्दीली ना, उनकी गुफ्तगू में शोर आया, ना उनके अंदर कोई मैं आया, बल्कि उन्होंने हमेशा हम कह के बात की है। बंद करें बात। से कम अज़ कम हमें ये फ़ायदा होना चाहिए और ऑडियंस को कि आप कोई फरमाइश कर सकें। गुफ्तगू लंबी होती जा रही है, अब तक कोई शायरी इसलिए कि उसके इसमें भी उठेगी दो आप। नज़्म आपने कहा तो मैं नज़्म पढ़ना चाहता। खुशगवार मौसम में अनगिनत तमाशाई अपनी अपनी टीमों को दाद देने आते हैं, अपने अपने प्यारों का हौसला बढ़ाते हैं। मैं अलग थलग सबसे 12वें खिलाड़ी को रूट करता रहता हूँ। मैं अलग थलग सबसे 12वें खिलाड़ी को रूट करता रहता हूँ। 12वां खिलाड़ी भी क्या अजब खिलाड़ी है। खेल होता रहता है, शोर मचता रहता है, दाद पड़ती रहती है और वो अलग सबसे की है, मैं लाड़काना की हूँ, कोई फ़र्क नहीं था। और आपको मज़े की बात बताऊँ, ये जो इतना इस वक्त उन्होंने इनकी तो तस्वीर कशी की है ना, बहुत संजीदा और बहुत ये और बहुत वो, एक मलमा है, अंदर से कुछ और है। मैं आप यकीन कीजिए आप इधर पूछे, आप उधर पूछे, मेरे जहन में आपके लिए यही सवाल है। अच्छा, मैं थोड़ा महताब के बारे में नहीं, हमने तो आते हुए उनसे पूछा था कि भाई सवाल रिपीट करें कि जो पर्दादारी रखी हमने तो आते हुए उनसे पूछा था भाई सच बोलना है कि झूठ बोलना है। अच्छा, महताब के बारे नहीं, में मैं मजाक एक तरफ थोड़ा सा मुखिल जी मजाक एक तरफ, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इनकी शख्सियत, इसमें कोई शक नहीं, तहजीब, तमीज़, शाइस्तगी, ज़बान, गुफ्तगू, शायरी, मतलब कौन से पहलू हैं जिसका जिक्र हम नहीं करेंगे। लेकिन जो एक पर्सनल, एक जो ज़ाती जो ताल्लुक़ है, वो जो जिस तरह से इन्होंने निभाया, और ये होंठ खुश्क और ज़बान फेर रहे हैं अपने इस पर। आरिफ साहब आप क्यों चल रहे हैं, आप छोड़ दीजिए ना, हम चले जाएंगे। नहीं, ऐसे में तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। फिर रात को जब रोज़ा खुलता तो कबाब और पता नहीं कौन सी चीज़ें, टिक्के, सब इनकी मर्ज़ी की, वो सब आ जाती थी, रोज़ा खुलता था। कहने का मतलब ये है कि ये मेहमानदारी अपनी जगह पे सब करते हैं, लेकिन जो अपनाइयत होती है, जो मोहब्बतें होती हैं और जो आपका ख्याल रखा जाता है, वो तो मैंने भी बहुत सी चीज़ें 70s में मेरा ख्याल देखनी शुरू कर दी थी। तो इनकी जो डाइवर्सिटी है लोगों के सिलेक्शन के बारे में इंटरव्यू के लिए, मिसाल के तौर पे हजरा बैठी हुई है यहाँ पे, एक तरफ ये उमर शरीफ का इंटरव्यू कर रही है कमेडियन, और दूसरी तरफ ज़िया मोहिउद्दीन साहब। ये कंट्रास्ट जो है ये कमाल कंट्रास्ट था। आपने दूसरी बार ईरान का जिक्र किया और उनको महताब ने आगे बढ़ाया था। तो मैं बस बताना चाहता था कि आपकी मोहब्बत में खाना फरहंग के एक नुमाइंदे यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, यहाँ पर सामने आप। सबसे पहले ये कि बहुत बड़ा एजाज़ है कि जैसे उस वक्त शुजात साहिबा ने कहा
इस वक्त हम अहद आरिफ में जी रहे हैं और शख्सियात अदब के लिहाज से या जंगी उम्मी तौर पर दो तरह की होती है। एक तो अहद आफरीन शख्सियात होती हैं और एक अहद शिनास शख्सियात होती है जो पूरे अपने माहौल को, ज़माने को, बल्कि सदियों को मुतासिर करती हैं। मेरी नज़र में इफ्तिखार आरिफ साहब न सिर्फ एक अहद शिनास शख्सियत हैं हमगीर, बल्कि एक अहद आफरीन की शख्सियत है। मुझे खुशी हो रही है, मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है कि आपके उनके सामने इस महफिल में बैठा हूँ कि ये अर्ज़ करना था कि आप जितने अरसे तक ईरान में तशरीफ़ रखे इको के सरबराह की हैसियत से, कि इनकी यादों में से कोई दिलचस्प याद अगर हमें इनायत फरमाएं इसकी। कि आप कहाँ हैं, क्या है वगैरह, तो इन्होंने कहा कि सवेरे से गालियाँ आ रही हैं। डिस्टर्ब थी, मगर ज़ाहिर है सभी डिस्टर्ब थे। तो वक़ार अहमद साहब हमारे एक प्रोड्यूसर थे, BBC में काम करते थे, बहुत ही मशहूर ब्रॉडकास्टर। तो उन्होंने वो मैं उनको बहुत एहतराम करता था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि इफ्तिखार वो प्रोग्राम भाई वो एक ख़ास तरह से बोलते थे वो, तो उनके अवधि का लहजा उनका गालिब था उनके बोलने पर। उन्होंने मुझे कहा कि कुछ तुमने लिखा हो तो तुम आ जाओ BBC, फ़ौरन ही आ जाओ। खैर मैं गया तो मैंने वहाँ कोई नज़म पढ़ी। मैं बुनियादी तौर पर एक बहुत ही बुज़दिल आदमी हूँ, इसलिए कि तमाम हल्का और मुसलमानों को भुगतना पड़ा, मसलन अलीगढ़ के लोगों को और इलाहाबाद के लोगों को और लखनऊ के लोगों को, जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान खामियाजा तो इस सरहद के इस तरफ भी भुगतना पड़ा, मुझे मालूम नहीं मगर लखनऊ को बहुत भुगतना पड़ा और बहुत देर तक तो उर्दू को